All right, so we're starting now. Who has joined in right now? It's me, the newcomer, sir. All right. So, your name is Saira, right? G, sir, it's Ida. Okay, Saira, we've completed two chapters in the previous class. We've just covered the part of AS. Like recently, we did something related to AS and one, or in fact, I think two chapters of A tools. Now we're going to size of the business. That is another A2 chapter. So when we talk about size of the business, when we talk about size of the business, we usually talk about how. Just a minute, let me add Manal and then I'll. All right. When we talk about size of the business, we usually say that there are two types of growths that can be done. So the first one was internal growth that you people did in your AS, and internal growth is referred to when the company expands its operations. Like agar aap bolo that we open up a new branch, we open up a new branch within the city, or we open up a new branch outside the city. अगर कराची के अलावा आप बोलो कि हम लाहौर में या इस्लामाबाद चले गए या even global हो गए, so what are you trying to say that you've internally grow, like you've achieved internal growth. But in this chapter that is related to your A levels, what we will be talking about is external growth. In external growth is not like आपने एक नई ब्रांच खोल ली या आपने अपने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया इस तरह का. Instead, external growth is that when the business expands by merging or taking over any other business, either the same kind of a business in the same industry, or it even can be a different business in a different industry. So we will be talking about this. External growth has basically three types of versions. So synergy and integration. So when we talk about two firms are integrated, the argument is that the bigger firm created in this way will be more effective. Like people often talk about how if one firm takes over another firm, or if one firm merges with another firm, it would be actually beneficial for both the firms because they have grown into a big firm. So people usually talk about this and they say the first fact is it is argued that the two businesses might be able to share research facilities and tool ideas that will benefit both of the businesses. अब देखो जब आप एक बड़ी फर्म बन जाते हो तो आपको ये एडवांटेज होगा that you can invest a lot of money in research and development. Though choti firms cannot spend this much of a money on research and development. However, if we talk about a one big firm, they will have the finances, they will have the resources, they will have a different department which can go and research and try to figure out कि आजकल मार्केट में किस चीज का गैप है, कस्टमर्स की क्या डिमांड है, एंड इवेंचुअली दे विल हेल्प गेट दैट. ठीक है. सेकंड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि जितना आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है, when the business becomes large you start to achieve economies of scale, that is your per unit cost cut down. तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे कट डाउन हो जाती है? पर यूनिट कॉस्ट इस तरीके से कट डाउन हो जाती है कि आपको कुछ एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से योर पर यूनिट कॉस्ट स्टार्ट्स टू रिड्यूस. तो मैं थोड़े से एग्जांपल्स दे देता हूँ. पहला होता है परचेजिंग इकोनॉमीज. अगर आप एक छोटा बिजनेस हो एंड यू स्टार्ट टू बाय रॉ मटेरियल्स, यू विल बाय इन लेस क्वांटिटी. However, if you are a big business and you start to buy raw materials, you will buy in bulk. और आप नॉर्मली अगर बल्क में बाय करते हो तो आपको वैसे ही डिस्काउंट मिल जाता है. तो अगर आपको कोई चीज, इफ यू वर गेटिंग समथिंग फॉर 100 रुपीज
and now you're getting it for like 90 rupees. So obviously obviously there would be an advantage overall कि आपको वो जो 10 रुपए पर यूनिट बच रहे हैं, 10 रुपए पर यूनिट बच रहे हैं, दैट विल बी एन ओवरऑल एडवांटेज फॉर यू। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट में। सेकेंडली, कई दफा फाइनेंशियल इकोनॉमीज में ये होता है दैट स्मॉल बिजनेसेस आर अनएबल टू गेट लोन्स। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस को लोन मिलना मुश्किल है। अगर उनको कैपिटल रेस करना है तो वो क्या कहेंगे कि हम अपने रिश्तेदारों से विल गो टू आवर फ्रेंड्स एंड आस्क टू फॉर देम, आस्क फ्रॉम देम कि हमें थोड़े से पैसे उधार दे दो। But when you talk about large businesses, banks would be more than willing to provide them with loan. और जब वो लोन प्रोवाइड करेंगे तो बहुत इनको एडवांटेज रहेगा, और एडवांटेज ये रहेगा कि भाई आपको लोन मिल रहा है तो यू कैन लाइक यूज दैट मनी। जब हम और इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे आएंगे तो विल डिस्कस, देयर आर अ लॉट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल बट दीज वर जस्ट एग्जांपल। तो बड़ा बिजनेस करने का पहला फायदा था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप इन्वेस्ट करोगे। Second advantage was that you can use this money, you can use your large scale business to achieve economies of scale. और तीसरा ये कि न्यू बिजनेस कैन सेव ऑन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय यूजिंग द सेम सेल्स आउटलेट्स एंड सेल्स टीम। अच्छा, I'll just give you an example of this as well। अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो बहुत ज्यादा जो वाटर गैलन्स चल रहे हैं आजकल, जो 19 लीटर गैलन होता है, हर जगह पानी घरों में सप्लाई कर रहा है। तो देर आर स्मॉल कंपनीज हु आर डूइंग इट, एंड देर आर लाइक वेरी स्मॉल कंपनीज हु जस्ट स्टार्टेड दिस वर्क, एंड देर आर लार्ज कंपनीज लाइक नेस्ले हु इज डूइंग दिस। अब नेस्ले का डेली एक बहुत बड़ी वैन जाती है एंड दे डिस्ट्रीब्यूट वाटर। उनको भी उतनी ही पेट्रोल कॉस्ट लग रही है जितनी छोटी वैन को लग रही है, क्योंकि उनको भी पूरी जगह घूमना है, लाइक इन सर्टेन एरिया उनको भी पूरी जगह जाना है, और नेस्ले को भी पूरी जगह जाना है। सो बोथ ऑफ देम फॉर एग्जांपल हैव 500 रुपीज कॉस्ट फॉर पेट्रोल, लेकिन नेस्ले ने उस 500 रुपीज कॉस्ट में 1000 गैलन्स दे दिए, और इन्होंने छोटी कंपनी ने उस 500 रुपीज कॉस्ट में सिर्फ 100 गैलन्स दिए। नाउ टेल मी के ये बात समझ आ गई कि आपकी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट, मतलब वो 1000 गैलन्स पे जब 500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपके 50 पैसाज आएंगे, मतलब 50 पैसा पर गैलन कॉस्ट आ रही है। एंड इफ यू डिस्ट्रीब्यूट दैट 100 रुपीज 100 गैलन्स कॉस्ट ऑन 500, तो हर गैलन पे आपको 5 रुपए कॉस्ट आ जाएगी। सो डू यू गेट इट कि किस तरह से आपकी बड़ा बिजनेस होने पे सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी राइट नाउ, देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड। किसी को है कोई क्वेश्चन? आर यू गाइस देयर? Yeah, sir, no questions yet. ऑल राइट, ओके, मूविंग ऑन। अब हम बात करते हैं कि अच्छा, अकॉर्डिंग टू देम ऐसा होता है कि देर आर firms that do not actually gain that kind of synergy even when they merge and take over। ठीक है, और basically shareholders are unable to understand कि हमने क्यों मतलब हमारा पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन था क्या। ठीक है, तो अगर आप ये बोलते हो कि यार इंटीग्रेट कर लिया और फर्म बहुत बड़ी हो गई है, सो द प्रॉब्लम बिकम्स दैट इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज एंड कंट्रोल इफेक्टिवली। जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ हाउ यू वर गेटिंग a reduced per unit cost, यहाँ पे diseconomies of scale हो जाता है when you say that there is overall a problem in managing and controlling your business। All right, तो अब what we need to understand is कि integration किस तरीके से हो सकती है।
देखो मर्जर तो सबसे पहले देयर आर टू थिंग, एक होता है मर्जर और एक होता है टेक ओवर। तो मर्जर का क्या मतलब है? मर्जर इज व्हेन the shareholders of two different companies or two different businesses agree to bring both firms together and they have a common board of directors। मतलब आप बोलो कि भाई हम दोनों जगह से चूज करके एक सेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे जो शेयर होल्डर्स का ख्याल रखेंगे और वो बिजनेस को रन करेंगे और मैनेज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल दो बैंक्स मिल जाएं और उन्होंने बोला कि हम लोग लाइक कंप्लीटली बात करके वी विल डू द वर्क टुगेदर, हम अपनी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अपने एसेट्स और ये वो सब चीज डिस्ट्रीब्यूट करके वी विल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दैट इज अ मर्जर। तो इसका आप एग्जाम्पल बहुत छोटा सा ये ले सकते हो कि अगर आप बोलो कि दो वो हैं, दो बर्गर आउटलेट्स हैं कराची में, एक समझ लो बर्गर लैब है और एक समझ लो बर्गर शैक है। ठीक है, तो उनके ओनर्स को लगा कि यार देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड वी आर अनएबल टू अचीव अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड देयर इज हाई कॉस्ट। इफ वी मर्ज विद ईच अदर तो हमारा एक बड़ा ब्रांड बन जाएगा और हमारे पास एक वैरायटी आ जाएगी एंड देन पीपल वुड बी विलिंग टू कम टू अस। तो एक काम करते हैं कि हम मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अग्रीमेंट कर लिया कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। वेयर एज टेक ओवर क्या होता है? जब कोई और कंपनी आपके 50% ऑफ द शेयर्स बाय कर लेती है। मतलब वेयर वन अनदर कंपनी बायज 50% ऑफ द शेयर ऑफ अनदर कंपनी और वो उसकी ओनर बन जाती है एंड दैट कंपनी कैन कंट्रोल वॉट एवर इज हैपनिंग। ठीक है, तो टेक ओवर को हम एक्विजिशन भी बोलते हैं। सिनर्जी क्या होता है? सिनर्जी पे हम बात कर रहे थे। सिनर्जी लिटरली मींस द दैट द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ द पार्ट्स। So in integration, it is often assumed that the new larger business will be more successful than the two formerly separate businesses were. तो synergy की हम बात कर रहे थे initially that if two businesses match together, the synergy would be high और उस वजह से दे विल बी एबल टू अचीव बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड कटिंग डाउन ऑफ कॉस्ट एंड ऑल। ठीक है, एक सेकंड, आई समवन माइट हैव joined. I think Manal was there. Now she's not there. Okay. तो अब जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हो ना, तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन और उस थ्री टाइप्स की इंटीग्रेशन में एक के दो इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होती है? जब हम सेम इंडस्ट्री एंड इन द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आइदर मर्जेस या वो एक इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का बेस्ट एग्जांपल वही है जो मैंने आपको किसका दिया था, बर्गर लैब और बर्गर शैक का। दोनों सेम इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी यही है कि दोनों लोगों को बर्गर्स प्रोवाइड करते हैं या फास्ट फूड खाना प्रोवाइड करते हैं। तो बोथ ऑफ देम आर इन द मेकिंग ऑफ इट एंड सप्लाइंग इट टू द कस्टमर्स। तो ये आपकी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल रहेगी। अब इसका एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज इज दैट इट एलिमिनेट्स वन कंपेटिटर। भाई अगर बर्गर शैक का कंपेटिटर बर्गर लैब था तो इट्स नोवेयर अ कंपेटिटर नाउ, क्योंकि वो आपने ले लिया है। पॉसिबल इकोनॉमी स्केल, जैसे ही बिजनेस बड़ा होता जाएगा यू विल कट डाउन ऑन अ लॉट ऑफ कॉस्ट जो हमने बात की थी, तो योर पर यूनिट कॉस्ट विल रिड्यूस। The third one is scope for rationalizing production. For example, concentrating all output on one side as opposed to two. So, इसका क्या मतलब होगा? That अब आपका प्रोडक्शन जो है, इंस्टेड के आप जगह जगह कर रहे हो लाइक इन डिफरेंट फैक्ट्रीज एंड डिफरेंट प्लेसेस, what you can do is that you concentrate on one side। मतलब आप एज वन बिजनेस जब काम करोगे तो आप दो जगह पे बातें नहीं कर रहे, यू विल टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर बिजनेस
and you will try to expand that business, make it grow, achieve economies of scale और ये सारी चीजें, तो it will eventually be helpful. सही है. नेक्स्ट पार्ट इज दैट इंक्रीज्ड पावर ओवर सप्लायर्स. भाई अब सप्लायर्स को भी पता है कि ये अकेले एक बिजनेस नहीं है, ये दो बिजनेस है, तो इनको कुछ गलत सप्लाई नहीं कर देना या कॉस्ट ज्यादा चार्ज नहीं कर लेना, बिकॉज इफ दे डू नॉट रिमेन हैप्पी तो सप्लायर का भी बहुत नुकसान हो जाएगा. दे विल लूज ऑन गुड कस्टमर्स. लाइक आपके पास एक प्रॉपर रेंज ऑफ कस्टमर्स चले जाएंगे जब दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, दो बड़े ब्रांड्स. ओके. नाउ डिसएडवांटेज क्या है? रैशनलाइजेशन में ब्रिंग बैड पब्लिसिटी. मतलब अगर आप एक साथ काम कर लेते हो, अगर आप एक साथ काम कर रहे हो एंड देयर इज अ प्रॉब्लम विद वन ऑफ द ब्रांड्स, तो ये होता है कि ओवरऑल दोनों ब्रांड के लिए पब्लिसिटी बुरी हो जाएगी. मतलब लोग ये समझेंगे कि भाई ये तो ओवरऑल जो साथ ये मर्ज हुए हैं, तो ये मर्ज होने की वजह से इनकी वो क्वालिटी नहीं रही या ये इतने अच्छे नहीं रहे जितने दे यूज्ड टू बी. ठीक है. एंड वंस देयर इज बैड पब्लिसिटी, ऑल राइट, आई यूजुअली टॉक अबाउट दिस. whenever you writing an answer in business studies, try to focus on the fact के कनेक्ट करो पॉइंट्स. जैसे अब मैंने बोला दैट इफ यू ब्रिंग बैड पब्लिसिटी, तो बैड पब्लिसिटी से क्या होगा? वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा दैट द बिजनेस इज नॉट डूइंग गुड, यू शुड स्टॉप गोइंग देयर. और जब ये हो जाएगा तो यू विल हैव लॉस ऑफ सेल्स, एंड इफ यू सी लॉस ऑफ सेल्स यू विल सी लॉस ऑफ प्रॉफिट्स एज वेल. ठीक है. तो इस तरह से अपने पॉइंट्स को कनेक्ट करना सीखना whenever you writing an answer. Okay. Now coming to the second point, may lead to monopoly investigation if the combined business exceeds certain market share limits. अच्छा, अगर आपका बिजनेस बहुत, ये दोनों बिजनेसेस मिलके बड़े हो जाते हैं, तो ये मोनोपोली पावर में चले जाते हैं. मोनोपोली क्या होता है कि आपके पास देर इज देर आर लेस बिजनेसेस हु आर मैनेजिंग द एंटायर मार्केट. तो अगर आपका एंटायर मार्केट लेस बिजनेसेस फॉलो कर रहे हैं, तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि ये कई दफा एफिशिएंटली रन नहीं करते. कई दफा ये अपनी मर्जी चलाते हैं, अपनी मर्जी से प्राइसेस रखेंगे, अपनी मर्जी से हाई चार्ज करेंगे, प्रोडक्ट उस क्वालिटी का नहीं प्रोवाइड करेंगे. तो ये वाला मसला रहता है. ठीक है. Now, when we talk about the second part, vertical integration is divided into two. अच्छा, I did not ask if there's any question, तो आप लोग अभी पूछ लो so that it's clear to you. Sir, I don't get what monopoly is. Okay, I'll tell you what monopoly is. मोनोपोली देखो, जब आप मोनोपोली की बात करते हो तो वी टॉक अबाउट, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ के इलेक्ट्रिक. अब के इलेक्ट्रिक इन कराची हैज अ मोनोपोली बिकॉज देयर इज नो competitor फॉर के इलेक्ट्रिक इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो अब जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कोई और नहीं है, तो के इलेक्ट्रिक चार्जेस वॉट एवर इट विशेस टू चार्ज. आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक ने आज 10 रुपीज पर यूनिट बढ़ा दिया है या 5 रुपीज पर यूनिट बढ़ा दिया है. यू कैन नॉट क्वेश्चन देम बिकॉज अनफॉर्चुनेटली देर इज ओनली वन प्रोवाइडर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कराची. सेकेंडली, के इलेक्ट्रिक लाइट जा रही है, बहुत ज्यादा जा रही है, इस जगह नहीं है, उस जगह नहीं है. कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट? नो, वी कांट, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ कंपेटिटर. तो मोनोपोली का मतलब होता है कि आप अकेले या मैक्सिमम देर आर टू फर्म्स हु आर रनिंग द एंटायर शो एंड दे आर द वंस हु प्रोवाइड दीज थिंग्स. मतलब इसके अलावा वो कोई और प्रोवाइड नहीं करता. तो आपको फिर इनके ही पास जाना पड़ता है कि भाई हमें ये दे दो. तो इस वजह से ये इनएफिशिएंट भी हो जाते हैं. सेकेंडली, इनएफिशिएंट के होने के अलावा ये अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं, लाइक दे चार्ज हाई. ठीक है. अब सायरा आपको समझ आ गया? Gee, I got it. ऑल राइट. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वर्टिकल इंटीग्रेशन एक फॉरवर्ड होती है और एक बैकवर्ड होती है. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है दैट यू आर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री
लेकिन आपकी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जिसको आप मतलब जिसके साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हो या जिसको टेक ओवर कर रहे हो या जिसके साथ मर्ज कर रहे हो, वो आगे के स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इफ आई एम अ कार मैन्युफैक्चरर और मैं एक शोरूम के साथ इंटीग्रेट कर जाऊं या शोरूम को टेक ओवर कर लूं, तो देखो मेरा स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या था? मेरा स्टेज ऑफ प्रोडक्शन था मैन्युफैक्चरिंग, वेयर एज उसका स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या था? टू प्रोवाइड द एंड प्रोडक्ट टू द पब्लिक, लाइक शोरूम का शो। मैंने अगर उसको लाइक मर्ज कर लिया उसके साथ या उसको टेक ओवर कर लिया, so what has happened is कि I have gone into a scale of production which was much forward than what I was doing. प्लीज मुझे बताओ ये बात समझ आ गई है? Are you guys clear on this? So basically, vertical for. So is it vertical forward integration that we're Yeah, talking that is about right now? vertical forward integration. Yeah. Oh, so it's basically like when you take the operations to like a next level. Like if you like have more Basically, operations. no. We're not talking about operations. We're saying कि हम different stage of production को डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो कि आगे का काम कर रहा है। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आई एम अ कार मैन्युफैक्चरर, तो मेरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के बाद गाड़ी को क्या होता है? वी सेल दैट कार, राइट? सो वी सेल दैट कार टू द जनरल पब्लिक थ्रू अ शोरूम। अगर मैं किसी शोरूम को शोरूम के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो देवर इन अ फॉरवर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो हमसे आगे की स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में थे। हम मैन्युफैक्चरर थे एंड देन देवर सेलिंग इट। सो इफ आई गेट इनटू अ बिजनेस और इंटीग्रेशन विद देम, then what we're doing is we are actually going into the fact कि हम लोग उनके साथ मर्ज कर रहे हैं so that we can बेसिकली हम अपने कस्टमर्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हम इनको गुड्स बेचते थे ना, एंड देन दे यूज्ड टू सेल इट टू द पब्लिक। तो नाउ इफ इट्स क्लियर? Yes, I got it. ओके, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट business is able to control the promotion and pricing of its own products. So business are aware कि भाई अगर हम, क्योंकि as अब हम खुद वहां बैठ रहे हैं शोरूम पे, सो वी आर अवेयर कि हम क्या प्राइस चार्ज कर सकते हैं, हम क्या प्रमोशन स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। सो वी वुडेंट हैव अ प्रॉब्लम इन दैट। ऑलराइट, वी विल बी अवेयर कि हम क्या कस्टमर्स कितने प्राइस पर विलिंग है, कस्टमर्स कितनी प्राइस दे सकते हैं। सो वी आर हैप्पी टू सर्व ऑन दैट। सेकेंडली, secures a secure outlet for the firm's product. अब कई दफा ये होता है कि आप गुड्स बना लेते हो बट यू डोंट फील कि हम इसको कहाँ पे लाइक बेचेंगे। तो इसका एग्जाम्पल ये होता है दैट यू कम अप विद द फैक्ट कि हमारे पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए, हमारे पास एक ऐसा शोरूम होना चाहिए जहां हमें पता है कि और किसी के गुड्स नहीं बिक रहे, बट इट्स ओनली आर गुड्स दैट आर सेलिंग ओवर हियर। सो इट्स कन्वीनियंट कि हमारे पास एक कंफर्म जगह है, and we wouldn't have a problem to find customers for our product because we have become the customer ourselves. Okay? अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? Consumers may suspect uncompetitive activity and react negatively. कई दफा कस्टमर्स को ये फीलिंग आती है कि ये लोग जो हैं वो देव बिकम लाइक वन, और ये इतना एफिशिएंट नहीं रहे हैं, और कस्टमर्स जो है वो इस अनकम्पेटिटिव एक्टिविटी की वजह से आपको शायद गुड्स आपके ना खरीदें। मतलब देर आर कस्टमर्स हु फील कि भाई अब क्योंकि ये मर्ज कर गए तो इनकी क्वालिटी वैसी नहीं रहेगी और ये नहीं होगा, सो व्हाट वी कैन डू इज वील फाइंड अदर आउटलेट्स जहां से हम ये चीजें खरीदें। The second one is lack of experience in this sector of the industry.
A successful manufacturer does not necessarily make a good retailer. This is a major point. If you feel कि आपके जो कस्टमर आप अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो एंड यू आर गोइंग इनटू द सर्विस सेक्टर एज वेल, आप कह रहे हो कि भाई मैं अपने गुड्स बना रहा हूँ एंड देन आई विल सेल इट माई सेल्फ, तो बहुत दफा क्या मसला होता है दैट यू आर नॉट केपेबल इनफ टू डू दैट वर्क। आप एक मैन्युफैक्चरिंग साइट के बंदे हो और आप ये करोगे तो probably you will not be able to achieve what you were achieving in the previous times। ठीक है, then we have, अच्छा, vertical integration backward। अब सायरा जब हम vertical integration backward की बात करते हैं, so we usually talk about वी आर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, लेकिन प्रोसेस जिसको हमने जिसके साथ इंटीग्रेट किया है वो प्रोसेस इज दैट यू आर एक्चुअली गोइंग बैक और आप इंटीग्रेट कर रहे हो अपने सप्लायर के साथ। ठीक है, बैकवर्ड का मतलब ये है। तो अगर मैं गाड़ी कार मैन्युफैक्चरर ही हूँ एंड आई टॉक अबाउट दिस, so probably I will say that I have integrated backward इन अ वे कि मैंने जो मेरे टायर्स बनाता है, जो मुझे टायर सप्लाई करता था, मैंने उसके साथ इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, तो टायर्स वाला कौन था? मेरा सप्लायर था। ही वाज प्रोवाइडिंग मी विद द टायर्स व्हिच आई वाज यूजिंग इन माय कार्स। एंड नाउ व्हेन आई हैव इंटीग्रेटेड और व्हेन आई हैव मर्ज्ड विद दैट टायर पर्सन, तो अब मैं किस पे चला गया हूँ? बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे। अब मुझे बताओ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन समझ आया? जी, backwards आ गया समझ। Forward में I'm still a little confused. ओके, फॉरवर्ड का आई गिव यू अनदर एग्जांपल। देखो, बैकवर्ड जैसे मैंने बोला कि मैं अपने सप्लायर के साथ मर्ज कर रहा हूँ ना, जी, फॉरवर्ड में आई एम सेइंग दैट आई एम मर्जिंग विद माय कस्टमर। कस्टमर किस तरीके से कि जैसे यू सी के अगर के एंड एन्स था, हाँ बेस्ट एग्जांपल ले लो, के एंड एन्स है अगर, वो पहले क्या करता था, के एंड एन्स जो था दे यूज्ड टू सप्लाई एट सर्टेन शॉप्स, आपको मिल जाता था के एंड एन्स। अगर केएनएन किसी और के साथ मर्ज करता है, ठीक है, केएनएन बोलता है कि मैं जो ये दुकानें मेरी हैं, फॉर एग्जांपल लोकल जनरल स्टोर है, सो इफ केएनएन बाय दैट जनरल स्टोर, लाइक टेक ओवर दैट जनरल स्टोर, तो केएनएन ने क्या किया, ये तो मैन्युफैक्चरिंग के काम में थे, नाउ दे हैव बिकम इनटू सर्विस सेक्टर एज वेल। मतलब इन्होंने जो अपना ही कस्टमर था ना इनका, दैट जनरल स्टोर, they have purchased that general store in order to sell their products। ठीक है, if that makes some clarity। जी, ओके, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन बैकवर्ड का एडवांटेज क्या है? वर्टिकल इंटीग्रेशन बैकवर्ड का एडवांटेज, सायरा एक सेकंड, इफ यू कुड वेट, देयर सम। yes. Hello, yeah, Saira, sorry, I'm back। All right. So when we were talking about vertical integration backwards, so we say that if you buy up your supplier, if you buy up your supplier, so it is clear that you can actually work upon your quality। ठीक है, आप क्वालिटी पे किस तरीके से काम कर सकते हो कि आप खुद ही सप्लायर हो, तो यू विल मेक श्योर कि जिस तरह का प्रोडक्ट आप चाह रहे हो आपको उसी तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आप उस तरीके से यू कैन फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट इज Got it. दैट
Next is that it encourages joint research and development into improved quality of supplies of components. अब आप क्योंकि एक बड़ा बिजनेस हो गए हो and you are clear on the fact कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, so you will invest on research and development because one person is sitting in one of the stages of production और दूसरा जो आप मतलब दोनों stages of production आपके अंडर हैं, तो you can research better and come up with the idea. All right. जी Okay. Third is businesses may now control supply of materials to competitors. अब आपका दिल ना हो कि competitor को जाए product, तो you can make sure कि भाई आप because you're the supplier yourself, तो आप कहोगे भाई competitor को हम नहीं दे रहे, तो आप नहीं दोगे. That is completely up to you. That wouldn't be a problem at all. ठीक है? Is this clear? जी ओके नाउ व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस. पहली बात तो यही कि अगर आप एक ऐसी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जाते हो जिसमें आपको यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट, सो दैट मे लीड टू प्रॉब्लम्स. अगर आपको कोई भी मसला होता है कि भाई हम किस तरीके से इसको मैनेज करें, यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग इट, सो इट वुड बी अ प्रॉब्लम. Second is supplying business may become complacent due to having a guaranteed customer. अब आपको पता है कि भाई मेरे पास guaranteed customer जो है कौन है, देर कोई भी एक प्रॉपर मुझे पता है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मतलब द कंपनी आई हैव टेकन ओवर. तो अब क्या होगा कि सप्लायर इतना विलिंगली काम नहीं करेगा बिकॉज they have fixed customer. They are not willing to get more customers on board. उनको पता है हमें एक ही बंदे के लिए काम करना है. So that's the only point. All right. Okay. Now we talk about conglomerate integration. What is conglomerate integration? It is diversification. जब आप बिल्कुल ही डिफरेंट इंडस्ट्री में चले जाते हो टू मर्ज. अगर मैं बोलूं कि एक शोरूम ओनर मर्जेस विद एक शोरूम ओनर मर्जेस विद लाइक अ रेस्टोरेंट. अब ये दोनों बिल्कुल सायरा आर वर्किंग इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट. वन वाज वर्किंग इन कार्स एंड वन इज वर्किंग इन फूड. लेकिन दोनों को ये नजर आया कि भाई हम अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं. डाइवर्सिफाई करने का क्या एडवांटेज होता है कि अगर एक जगह डिमांड कम होती है, so you can eventually find that benefit in the other industry. ठीक है? तो इसका एडवांटेज क्या है? Diversifies the business away from its original industry and markets. So this is what I told you कि अगर इनिशियल इंडस्ट्री में थोड़ा सा भी मसला हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो यू गो ऑन टू द नेक्स्ट industry and you see that you can find that advantage in that industry. दूसरा आपकी रिस्क स्प्रेड हो जाती है एंड यू एंटर अ फास्ट ग्रोइंग मार्केट. मतलब आप ये देख लेते हो, ये देख लेते हो कि मसला क्या हो रहा है. ठीक है? आप जब ये रिस्क देख लोगे कि भाई इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है एंड यू गो इनटू अ डिफरेंट मार्केट, सो प्रोबेबली आपको ये डर नहीं रहेगा कि यार अगर यहाँ से पैसे नहीं आएंगे तो सेकंड एंड से पैसे आ सकते हैं. ठीक है? अब आपके पास इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि लैक ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इन द एक्वायर्ड बिजनेस सेक्टर. ऑब्वियसली वही वाली बात कि एक शोरूम ओनर को जब आप बोलोगे कि भाई रेस्टोरेंट चलाने, अब शोरूम ओनर्स और रेस्टोरेंट इज वर्किंग इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो उनको ये वाली एक्सपर्टीज नहीं होंगी, तो दे कैन हैव अ प्रॉब्लम. सेकंड इज देयर कुड बी अ लैक ऑफ क्लियर फोकस एंड डायरेक्शन. अब आप दो बिल्कुल सेपरेट बिजनेस चला रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि मुझे फोकस किस पे करना है और डायरेक्शन क्या है. ठीक है? तो दिस इज हाउ इट इज. अब हमने एक राइट कॉलम छोड़ दिया था इसका, इस टेबल का, विच शोड
The impact on stakeholders. Stakeholders कौन होते हैं? Stakeholders वो होते हैं जिनका लिंक होता है बिजनेस से somehow or the other. अब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जो हमने कही थी, दैट वाज सेम इंडस्ट्री एंड सेम चॉइस, इसलिए कंज्यूमर्स आर योर स्टेक होल्डर्स, क्योंकि दो बिजनेसेस मर गए तो इसलिए कंज्यूमर्स के पास वैरायटी कम हो जाएगी और कुछ वर्कर्स की जॉब भी चली जाएगी व्हेन टू बिजनेसेस स्टार्ट्स टू वर्क टुगेदर, क्योंकि आप एफिशिएंसी की बात करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं नजर आएंगी. ऑल राइट. Correct, yes. Okay, coming to the second point, that is vertical integration. Vertical integration forward would mean that workers may have greater job security because the business has secured outlets. So if you're going into vertical integration, the thing is that you will have an advantage overall कि आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी रहेगी कि हमारा काम बंद नहीं होने वाला and we can still join. Second is there may be more varied career opportunities because you are in two different stages of production, so workers can work in different sites, like different stages of production. Third is the retail outlet because of the withdrawal of competitor product. अब कस्टम कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम हो सकती है कि एफिशिएंसी इतनी नजर ना आ रही हो लाइक नॉर्मल जैसे पहले थी, क्योंकि ये दोनों साइड्स मिल चुकी हैं. वर्टिकल इंटीग्रेशन बैकवर्ड की क्या बात होती है? दैट वर्कर्स अगेन हैव अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी बिकॉज दोनों साइड्स अब इनके पास हैं तो दे नो दैट दे वांट टू ग्रो. सेकंड, कंज्यूमर्स में ऑब्टेन इम्प्रूव्ड क्वालिटी से लगाते हो तो वी कैन एक्चुअली हैव अ बेटर क्वालिटी ओवरऑल एंड इनोवेशन, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो. Control over suppliers to competitors may limit competition and choice for customers. अब क्योंकि suppliers are only supplying to one particular firm, तो consumers को overall कम variety मिल सकती है. ठीक है. अच्छा, conglomerate integration again, क्योंकि you're diversifying, so you give an opportunity for your you give an opportunity to your workers कि वो कहीं भी काम कर लें. हो सकता है उनको शोरूम पे मजा ना आता हो तो now they can shift to the restaurant side. And more job security because risks are spread across more than one industry. तो अगर आप इस तरीके से करोगे so you have better option of working together. ऑलराइट. अब हम जब ये टेबल से पहले बात कर रहे थे कि देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स विद mergers and takeovers, and what can those problems? The problems are maybe there may be benefits from shared research facilities or marketing and distribution system if the firms have product in different markets. So mutual benefit and shared research facilities का है कि अगर आप बिल्कुल डिफरेंट मार्केट में हो तो यू कैन नॉट से कि मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बैठ सबको डिफरेंट मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, तो एक डिपार्टमेंट बनाने का कोई एडवांटेज नहीं है. The third point is the business and management culture. For example, the approach each company takes to involve managers and workers may find it very difficult to work effectively and cooperatively together. अब दो businesses जब merge कर रहे हैं, so they are coming up with a totally